سر ایم آئی کو اپنی سیل بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو ہے وہ جو پروڈکٹ رینج ہے وہ اگر 50% نہیں تو کم 40 to 50 کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے، اگر ٹوٹلی پروڈکٹس نہیں بھی ہوتی تو 50% کے راؤنڈ باؤٹ ہونی چاہیے، اور جو پروڈکٹس آ رہی ہیں ہمارے پاس وہ ریگولرلی آنی چاہیے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پروڈکٹ جو آئی ہے ابھی ماڈل لانچ ہوا ہے اور وہ ایک دفعہ آیا اس کے بعد اس کا اسٹاک نہیں آیا۔ انجن تو ہے ہی نہیں اس گاڑی میں، تو وہ بیٹری کا جو ہے ظاہر ہے اس کی ریپلیسمنٹ تو ہونی چاہیے۔ یہاں پہ اگر بنے گی بیٹری تو وہ ہمارے لیے اور بہتر ہو جائے گا کہ وہ ہمیں کاسٹ اس کی جو ہے وہ بہت کم پڑے گی۔ سمارٹ پلانٹ پروٹیکشن سسٹمز یعنی انٹیلیجنٹ فائٹو پروٹیکشن کا مقصد فصلوں کی صحت، معیار اور مقدار کو مؤثر طریقے سے بہتر بنانے کے لیے وسیع پیمانے پر نیٹ ورک والے آئی او ٹی آلات استعمال کرتے ہوئے پودوں کی پیداوار کی نگرانی، حفاظت اور انتظام کرنا ہے۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے اسسٹنٹ پروفیسر اور شنجانگ نارمل یونیورسٹی کے ایڈجنکٹ پروفیسر ڈاکٹر عابد علی پاکستان میں سمارٹ ایگریکلچر کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پروگرام بھاگ چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ کچھ عرصے قبل مشہور چینی اسمارٹ فون برانڈ سیاؤمی اور پاکستانی کمپنی ایئر لنک نے لاہور میں ایک پروڈکشن پلانٹ لگایا۔ کیا یہ میڈ ان پاکستان کی جانب ایک بڑا قدم ہوگا؟ پاکستان میں شیاؤمی کی فروخت کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ کن عملی مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے؟ آئیے مل کر رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ ماہ فیکٹری کی افتتاحی تقریب میں ربن کاٹنے کے بعد پاکستان کی مقامی کمپنی اور چینی اسمارٹ فون کمپنی کے درمیان شراکت داری کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ اس تعاون کے بعد کمرشل کونسلیٹ جنرل آف پاکستان گوانگچو محمد عرفان بھی اسمارٹ فونز کے شعبے میں پاکستان کے امکانات کے حوالے سے پر امید ہیں۔ بڑی اچھی خبر ہے پاکستان میں ریسنٹلی جو شامی نے اپنے موبائل فون مینوفیکچرنگ کے لیے جو بھی انٹل کے ساتھ مل کے آئیٹیل کے ساتھ مل کے جو پلانٹ لگا رہے ہیں، تو وہ 3 ملین کے قریب جو ہے وہ اسمارٹ فون پاکستان میں پروڈیوس کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کچھ سال پہلے 2016 کے اگر ہم ڈیٹا نکال کے دیکھیں 2017 کا، تو پاکستان نیٹ موبائل فون امپورٹر تھا، جو کہ اب اس سال پاکستان الحمدللہ جو پاکستان ہے وہ ایکسپورٹ کی طرف چلا گیا ہے کہ موبائل فون کے ایکسپورٹ میں آ گئے ہیں۔ ہمارا جو اوورآل جو امپورٹس ہیں وہ کم ہو گئی ہیں۔ لاسٹ ایئر ہم نے تقریباً 2018-19 میں ہم نے کوئی 23 ملین کے قریب اسمارٹ فونز جو ہیں وہ امپورٹ کیے، جو کہ اس سال صرف 9 ملین پہ رہ گئے۔ محمد عرفان نے اس کامیابی کا صحرا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت میں پاکستان کی مضبوط طاقت اور ہنرمند انسانی وسائل کو قرار دیا۔ پاکستان کے پاس اس شعبے میں ہنرمند افرادی قوت اور آئی ٹی ورکرز موجود ہیں۔ یہ تعاون کے لیے ایک بڑا فائدہ ہوگا۔ ہمارے پاس لینڈ ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہیں کہ ہم موبائل فون میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کر سکیں، اور اس سلسلے میں جو چائنیز کمپنیز ہیں انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے۔ پاکستان کے اندر انفینکس، ویوو، ٹیکنو، اوپو، یہ سارے برانڈ جو ہیں وہ اسمبلنگ بھی کر رہے ہیں، اور اب شامی نے بھی اس میں انٹری ڈالی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے لیے بڑی پازیٹیو نیوز ہے، اور ہم اگلے 1-2 سال میں ہم جو ہمارا چونکہ ہم نے جو پچھلی پالیسی تھی ہماری موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کے تحت، جو ہم نے کہا کہ 49% موبائلز ہم جو ہیں وہ لوکلی مینوفیکچر کریں گے، تو وہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم اس میں مزید شامی کے آنے سے ہے وہ بھی مزید مضبوط ہوگی، اس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو امپورٹس ہیں جو موبائل فونز کی ہیں وہ بھی اس پہ کافی کمی کرنے میں ہمیں مدد ملے گی، اور پھر الٹیمیٹلی ہم جو اس پہ کچھ موبائل فونز ہم نے ٹیکنو نے کچھ 5000 کے قریب سیٹ جو ہیں وہ گلف میں ایکسپورٹ کیے ہیں اس سال، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے 1-2 سال میں ہم موبائل فون جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرنے والے ملکوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ مقامی طور پر مزید فون بنانا ہمارا مقصد ہے۔ شیاؤمی کے سٹور پر فونز کی فروخت اس بات کا واضح ثبوت ہے۔
Xiaomi के साथ एक साल से ज्यादा अरसा काम करने वाले सेल्स एग्जीक्यूटिव ने भी अपनी तजावीज से आगाह किया। सर एमआई को अपनी सेल बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो जो प्रोडक्ट रेंज है वो अगर 50% नहीं तो कम 40 to 50 के राउंड अबाउट जो है, अगर टोटली प्रोडक्ट्स नहीं भी होती तो 50% के राउंड अबाउट होनी चाहिए। और जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारे पास वो रेगुलरली आनी चाहिए। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट जो आई है अभी मॉडल लॉन्च हुआ है और वो एक दफ़ा आया उसके बाद उसका स्टॉक नहीं आया, तो कस्टमर एक दफ़ा वो प्रोडक्ट ले गया, कस्टमर के ज़हन में ये आती है बात कि ये मंगवा नहीं रहे, या तो ऑफिशियली Xiaomi पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रहा है जिसकी वजह से स्टॉक शॉर्ट है या कोई और इशू है, उसकी वजह से कस्टमर एक दफ़ा आता है, दो दफ़ा आता है, बार बार जब कस्टमर आता है और वो प्रोडक्ट नहीं होती तो फिर कस्टमर जो है वो पीछे हो जाता है, वो हमारे पास दोबारा नहीं आता उस प्रोडक्ट के लिए। तो सबसे पहले तो हमें जो अपनी प्रोडक्ट रेंज है उसे बढ़ाना चाहिए। अगर हमारे पास प्रोडक्ट रेंज अच्छी होगी। एम्पोरियम मॉल लाहौर में Xiaomi स्टोर के सेल्स फीडबैक के मुताबिक पिछले महीनों में दरपेश सबसे अहम मसला इन्वेंट्री की कमी है कि शिपमेंट चाइना से आ ही नहीं रही, अगर आ रही हैं तो बहुत लिमिटेड स्टॉक आ रहा है। कस्टमर जब हमारे पास विज़िट करता है तो हमारे पास अगर डिस्प्ले में मोबाइल है लेकिन उसका स्टॉक नहीं होता, उसकी वजह से कस्टमर बहुत डिसहार्ट होता है। अगर पाकिस्तान के अंदर Xiaomi की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो हमें चाइना से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी और स्टॉक जो है वो हमारे पास अवेलेबल होगा और कस्टमर उससे जो है वो इजीली अवेल कर सकता है। दूसरा, कस्टमर की डिमांड अगर पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही है तो वो कहता है कि चाइना से चूँकि इंपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही है तो कस्टमर की डिमांड ये है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो प्राइस के ऊपर भी आना चाहिए, इफेक्ट आना चाहिए कि प्राइस कम होनी चाहिए। पाकिस्तान में प्रोडक्शन का तो कस्टमर को यही बेनिफिट है, अगर प्राइस कम होगी तो सेल ज़्यादा होगी। एम्पोरियम मॉल के ग्राउंड फ्लोर G14 पर वाक़े Xiaomi के इस स्टोर पर आने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इसमें मोबाइल फ़ोन्स और ज़ेली मसनूआत से लेकर टीवी सेट, ब्लूटूथ स्पीकर, वाईफाई कैमरे, बाइक, यहाँ तक के पंखे, वज़न के पैमाने, लैंप और रोज़मर्रा ज़रूरियात की इंटेलिजेंट लाइफ की तकरीबन तमाम मुख्तलिफ मसनूआत हैं। और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं 150 के राउंड अबाउट हैं। इस वक्त जो हॉट सेलिंग मोबाइल फ़ोन मॉडल है वो Redmi Note 11 है और Redmi Note 11 Pro है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो सबसे ज़्यादा सेल जो है इस वक्त वो Redmi Note 11 की है और अभी तक हमें उसकी किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं आई। कस्टमर डिमांड भी है और रूटीन से जो है वो अच्छी सेल हो रही है उसकी। दूसरे ब्रांड्स की तरह Xiaomi प्रमोशन नहीं दे सकता। वबा के पेश नज़र ज़्यादा चैनल्स ऑनलाइन हैं। फ़रोख्त का तासर बहुत अच्छा है। 23 मार्च है पाकिस्तान डे, इन मौक़ों पे जो है वो प्रमोशन लगती रहती हैं, फ्लैश सेल भी लगती रहती है। ईद के मौके पे जो है जैसे भी कोई ना कोई हॉलीडे आती है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई हमारा त्यौहार होता है उसके ऊपर प्रमोशंस लगती रहती हैं, तो कस्टमर को हम नोटिफाई भी करते हैं। बेस्ट सोर्स है कस्टमर को बताने के लिए वो सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम कस्टमर को बता सकते हैं जी अभी प्रमोशन चल रही है और कितनी देर तक है और कस्टमर कौन कौन सी प्रोडक्ट पे प्रमोशन है और कस्टमर्स को कैसे अवेल कर सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ है और हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत के लिए मुतअद्दिद टैक्स मराआत का ऐलान भी किया है। ताहम टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पर पुख्ता होने के लिए तवील वक्त दरकार है। ईवी दौर में दाखिल होने की रफ्तार को तेज़ करने के लिए क्या पाकिस्तान ईवी बैटरी प्रोडक्शन से आगाज़ कर सकता है? इस सनत में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है और चीन और पाकिस्तान कैसे तावन कर सकते हैं? आइए हमारी रिपोर्ट देखिए। हुकूमत साफ और सरसब्ज पाकिस्तान बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत की तरक्की के लिए सरगर्म ताउन कर रही है। पाकिस्तान में फाइनेंस एक्ट 2021 में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्लान AIDEP 2021-2026 में मुकामी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17% से कम करके 1% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मखसूस पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 1% मुकर्रर की गई है। जो भी पॉलिसी बनती है पाकिस्तान के अंदर, अभी इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई, ईवी पॉलिसी, ये बेसिकली इंडस्ट्री ने नहीं फोर्स की थी, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने फोर्स की थी।
اب کلائمیٹ چینج کا جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ ہیں کہ جی ہم نے کلائمیٹ یا اپنا گرین جو ہے نا اس طرف ہم نے اپنے آپ کو رکھنا ہے اور کاربن فٹ پرنٹ کو ہم نے اپنا کم کرنا ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے پہلے ہی پاکستانی الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے قیام کے لیے 5 مقامی ای وی مینوفیکچررز کو اکٹھا کیا ہے. یہ ایسوسی ایشن اس شعبے میں اہم سرمایہ کاری کرے گی اور بین الاقوامی آٹوموٹیو کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کرے گی. پاکستان نے نومبر 2020 میں الیکٹرک گاڑیوں کی ایک حوصلہ مند قومی پالیسی کی منظوری بھی دی ہے جس کا ہدف 2030 تک تمام مسافر گاڑیوں اور ٹرکوں کے 30% اور 2040 تک 90% تک الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت کو بڑھانا ہے. پالیسی تو چلے ہم نے دے دی لیکن اب آپ 2 سال ہو گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ای وی اب تک پاکستان میں آ گئی ہے. اور اس کی بنیادی ریزن ہے, بنیادی ریزن یہ ہے کہ الیکٹرک وہیکل ایک سستی وہیکل نہیں ہے. اور ای ویز کے اندر آپ دیکھیں تو زیادہ تر بڑی گاڑیاں ایکسپینسو کارز ہیں جو کہ ہائی اینڈ کارز ہیں. اب بہترین جو اگزامپل وہ ناروے کا ہے, سویڈن کا ہے. یہ جو ملک ہے نا جی, ان کی جو الیکٹرک پروڈکشن ہے اس کا 80% فٹ پرنٹ جو ہے نا وہ گرین ہے. اٹ از ناٹ بیسڈ آن فرنس آئل اور کاربن یا پیٹرول یا ڈیزل سے وہ الیکٹرسٹی پروڈیوس نہیں کرتے. 80 to 90% ان کی جو ہے وہ ونڈ سے پروڈیوس ہوتی ہے یا نیوکلیر ہوتی ہے, اور نیوکلیر بھی وہ گرین ہی ہوتی ہے. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جب ای وی انٹروڈیوس کی تو ہر گاڑی کے اوپر انہوں نے ایک سبسڈی انٹروڈیوس کی. تو جو بھی گاڑی اس طرح ناروے میں یا سویڈن آ رہی تھی اس کو اپنی پرائسنگ کو اس لیول پہ وہ لے کے آئے تاکہ عام آدمی جو ہے نا اس کو ایک انسینٹیو ہو اور وہ لے. پرائسنگ سٹرکچر جو دنیا کے اندر ہے, سولر پیکس, یہ بیٹری پیکس کا جو کاسٹ ہے وہ چھوٹی گاڑیوں کے اندر ابھی تک وہ متعارف پراپر طریقے سے ہوئی نہیں. ہوئی بھی ہے تو یہاں کی لیٹ سے جو کرولا کی پرائس ہے نا وہ چھوٹی گاڑی کی وہ پرائس ہوگی. اب وہ پرائس جو ہے وہ ہمارے یہاں لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے. الیکٹرک گاڑی ای وی کی پیداواری لاگت کا ایک بڑا حصہ ای وی بیٹری ہے جو تقریباً 70% ہے. پاکستان میں الیکٹرک گاڑی کی بیٹری کی پیداوار کو ترقی دینے سے نہ صرف الیکٹرک گاڑیوں کی انڈسٹری کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے بلکہ پیداواری لاگت کو کنٹرول کر کے صارفین کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. جی ابھی تو یہ جو آپ نے اوڈی دیکھی ہے یا دوسری ایگزیکٹو کاریں جو ہیں یہ تو ابھی ظاہری بات ہے ان کی تو بہت ہائی پرائس ہے. ہم جو اگر ہمارے یہ جو ممالک ہیں اس میں جو اگر چھوٹی کار جو بنے گی تو وہ ہی فیزیبل ہوئے گی جو عام مڈل کلاس جو طبقہ ہے جو اس کی رینج میں آ سکے. تو میں سمجھتا ہوں اگر جب یہاں پہ انڈسٹری لگ گئی, پارٹس بھی یہاں پہ بننا شروع ہو گیا, اس کی بیٹری کی مینوفیکچرنگ بھی شروع ہو گئی تو وہ ہمارے لیے بہت فیزیبل ہوئے گا اور بہت آسانی سے اویلیبل ہوئے گی اور بہت سستی اویلیبل ہوئے گی. جی بہت دیکھیں جی آفٹر سیل سروس تو دینی ہے نا ہر گاڑی کی, تو اس کے پارٹس جیسے ہر گاڑی کے پارٹس آتے ہیں ساتھ گاڑی چلتی ہے تو پارٹس کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے ہی ہے اس میں تو صرف بیٹری ہی ہوتی ہے, انجن تو ہے ہی نہیں اس گاڑی میں, تو وہ بیٹری کا جو ہے ظاہر ہے اس کی ریپلیسمنٹ تو ہونی چاہیے. یہاں پہ اگر بنے گی بیٹری تو وہ ہمارے لیے اور بہتر ہو جائے گا کہ وہ ہمیں کاسٹ اس کی جو ہے وہ بہت کم پڑے گی, تو وہ اس میں کسٹمر کے لیے بہت اچھا ریلیف ملے گا. ای وی بیٹری پیداواری لاگت کا بڑا حصہ بنتی ہے اور بیٹری کا بنیادی خام مال لیتھیم ہے. پاکستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اس کے وافر ذخائر ہیں, اس لیے میرے خیال میں پاکستان میں ای وی بیٹری کی صنعت کی بھرپور صلاحیت ہے. چین الیکٹرک گاڑیاں بنانے والے سر فہرست ممالک میں سے ایک ہے. 2021 میں چین کی نیو انرجی گاڑیوں کی مارکیٹ کا پیمانہ 600 ارب چینی یوان تک پہنچ گیا, جس میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 76.5% اضافہ ہوا. چین میں الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت کے عروج کے بعد الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹری کی پیداواری پختگی بھی تیز ہوئی. پاکستان چین کے تجربات سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ چین کی سرکردہ ای وی بیٹری کمپنیاں جیسا کہ کنٹمپریری ایمپریکس ٹیکنالوجی کو لمیٹڈ یعنی CATL اب اپنے کاروبار کو ایک وسیع رینج تک بڑھا رہی ہیں. ایک طرف وہ مزید معدنی وسائل کی تلاش میں ہیں اور دوسری طرف وہ آٹو موبائل اسمبلنگ پلانٹس کے ساتھ سٹاک کی تبدیلی یا مشترکہ منصوبوں کی شکل میں تعاون کر رہے ہیں یا مل کر بیٹری پروڈکشن انٹرپرائزز قائم کر رہے ہیں. اس سے صنعت کے اندر وسائل کو زیادہ معقول طریقے سے مختص کرنے اور ٹیکنالوجی کو مضبوط بنانے میں مدد ملتی ہے. ایسا تجربہ پاکستان کی ای وی کمپنیاں بھی سیکھ سکتی ہیں. پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی ترقی کا آغاز
मकामी मॉडल्स के साथ होना चाहिए जो आला कारकर्दगी की हामिल हों। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकबूलियत बढ़ाने और सार्फिन के लिए लागत कम करने के लिए कार और बैटरी को अलग करना भी एक काबिल रसाई तरीका हो सकता है। सार्फिन कारें खरीद सकते हैं और बैटरियां लीज पर ले सकते हैं ताकि शुरू में ईवी का इंतखाब करने के लिए उन पर कम माली दबाव हो। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी की सनत को तरक्की देने के लिए चीन और पाकिस्तान को कुछ इजाफी इमदादी फवायद हासिल हैं। मुस्तकबिल में इस शोबे में ताउन के क्या इम्कानात हैं? चीनी हुकूमत ने ईवी बैटरी की सनत को तरक्की के इब्तदाई मराहिल में बहुत मदद फराहम की है। सनत ने बहुत तेज़ी से तरक्की की जिसकी वजह से इसकी पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा है। इस वक्त चीन में ईवी बैटरियों की मार्केट पर मारूफ कारोबारी इदारों की अजारादारी है जो कि मुकम्मल जीत वाली सूरत हाल है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ बहुत से दूसरे दर्जे की ईवी बैटरी फैक्ट्रियों ने अपनी टेक्नोलॉजी को मुंतकिल करने और अपनी प्रोडक्शन लाइन को मुंतकिल करने के लिए गैर मुल्की मार्केट का रुख करना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान उनके बेहतरीन इंतखाब में से एक हो सकता है। ये कंपनियां पाकिस्तान में कदम जमाने के बाद तवानाई ज़ख़ीरा करने के मंसूबों के लिए अपनी बैटरियां इस्तेमाल करने पर भी गौर कर सकती हैं, जैसे कि फैमिली यूनिट्स में बिजली का छोटा ज़ख़ीरा कायम करना ताकि बैटरियों में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली जमा की जा सके और फिर ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल किया जा सके, जिससे एक नई मार्केट खुलेगी। डॉक्टर आबिद अली जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के असिस्टेंट प्रोफेसर और शेनयांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट प्रोफेसर हैं। इन्होंने चीन में डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक की तालीम मुकम्मल की और पाकिस्तान वापस आ गए। जरी अजनास के कीड़ों पर काबू पाने के माहिर के हैसियत से इन्होंने चीन और पाकिस्तान के माबेन जरी दावन के शोबे में कौन सी नुमायां खिदमात अंजाम दी हैं, आइए मिलकर इनकी कहानी सुनते हैं। चीन से अपनी तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आने के बाद आबिद अली को जिस सबसे मुश्किल मसले का सामना करना पड़ा वो 2020 के अवाइल में पाकिस्तान में टिड्डी दल की वबा थी। 2020 में टिड्डी दल का एक बहुत बड़ा ख़तरा था, इसलिए जब मैंने पाकिस्तान में टिड्डी दल के हमलों का सुना तो मैंने चीन के ज़रई माहिरीन को पैगाम भेजे और एक दोस्त ने प्रोफेसर चांग लूंग को ढूंढने में मेरी मदद की जो चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से हैं। चांग ने मुझे बुलाया और कहा, फ़िक्र की कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एंटोमोलॉजी के प्रोफेसर और अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के टिड्डी दल कंट्रोल के माहिर चांगलुंग ने पाकिस्तान में टिड्डी दल के हमले के बारे में सुना तो कोविड-19 की वबा की पैदा करदा रुकावटों को अबूर करते हुए टिड्डी दल के फैलाव के इब्तदाई मरहले में माहिर टीम के रुकन के तौर पर टिड्डी दल की रोकथाम और कंट्रोल की मनसूबाबंदी में मदद के लिए फरवरी 2020 में फील्ड ट्रिप पर पाकिस्तान आए। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। कोविड-19 की वजह से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने ने पाकिस्तान के लिए खुसूसी परवाज़ का इंतज़ाम किया। वो टिड्डी दल के लिए पूरे पाकिस्तान में घूम रहे थे और इस पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी लोगों को तरबियत दी। पाकिस्तान भर के मैदानी दौरों के दौरान चांग और दीगर माहिरीन ने मुख्तलिफ सूरत हाल की बुनियाद पर सहराई टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, जिनमें अंडे खोदना और केमिकल छिड़काव शामिल है। मखसूस इक़दामात के अलावा चांग ने पाकिस्तान को सहराई टिड्डी दल के कंट्रोल के लिए एक पायदार, मुअस्सर और तवील मुद्दती इंतज़ामी निज़ाम कायम करने की तजवीज़ भी दी। इस निज़ाम में हयातियाती कंट्रोल और माहौलियाती कंट्रोल अहम तरीके हैं। इनका ख्याल है कि सहराई टिड्डी दल की निगरानी और पेशगोई दुरुस्त और मुअस्सर होनी चाहिए। ये स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन का एक अहम तस्वर भी है जिसे अली पाकिस्तान में फ़रोग़ दे रहे हैं। स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन मुख्तलिफ तरीकों और कंट्रोल के इंज़माम से ज़्यादा पैदावार हासिल करना, मसनूई और मशकों का कम से कम इस्तेमाल करना है, जिससे लेबर के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है और साथ ही दुरुस्त तरीके से कीड़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। कीड़ों के बारे में पेशीन गोई और निगरानी भी स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन में अहम किरदार अदा करती है। अली ने स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में तफसील से बात की। स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन का मकसद जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कामयाबियों का भरपूर इस्तेमाल, कंप्यूटर और नेटवर्क
इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑडियो और वीडियो, S3 टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन और माहिराना हिकमत और इल्म का मुकम्मल इस्तेमाल करना है ताकि बसरी रिमोट तशखीस, रिमोट कंट्रोल और डिजास्टर वार्निंग समेत इंटेलिजेंट मैनेजमेंट को अमल में लाया जा सके। हम ये भी कह सकते हैं कि सेंसर्स से लेस ड्रोन मसनूई जहानत के हामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर खेत में बहुत से पौधे हैं, लेकिन सिर्फ मुतासरा पौधों को बायो कीड़े मार अद्वियात का ये स्प्रे मिलेगा, और ये भी कि हमें वो तकनीक मुतारिफ कराने की ज़रूरत है जिनमें कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल कम से कम हो। इसमें एक तकनीक स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन भी शामिल हो सकती है, जो कीड़ों की जिनयाती तब्दीली, पौधों की जिनयाती तब्दीली और बिल आखिर कीड़े मकोड़े कम और पैदावार ज़्यादा होगी। अली की मदद से पाकिस्तान और चीन स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने से पौधों के तहफ़्फ़ुज़ की मुख्तलिफ तकनीकों से मुतालिक 37 मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हासिल की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPAC के फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान और चीन कुछ मॉनिटरिंग टैब लगा सकते हैं जो कीड़ों के नताइज की निगरानी कर सकते हैं। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। कपास पाकिस्तान की अहम नकदावर फसल है और ज़र मुबादला का जरिया है। जनवरी से अक्टूबर 2021 पाकिस्तान की सूती धागे की पैदावार 2.9 मिलियन टन रही, जो कि पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 15% ज्यादा है, और कॉटन फैब्रिक की पैदावार भी पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 15% ज्यादा है। 2020-2021 माली साल कपास की पैदावार 1980 की दहाई की वस्त के बाद सबसे कम सतह पर गिर गई। आबिद अली ने निशानदही की कि स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन कपास की पैदावार में इजाफा और फसलों के कीड़ों से मुतासर होने में कमी लाएगा। कतार और पाकिस्तान में हमारी यूनिवर्सिटियां कुछ मंसूबों पर काम कर रही हैं, और ये कि हम कपास के खेत में किस तरह स्मार्ट प्लांट के तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरीन तरक्की कर सकते हैं। जब ड्रोन स्प्रे करता है तो पौधे हिलते हैं और हर पत्ते को सही जगह पर स्प्रे पहुंचेगा। लिहाजा रोटरी नोजल्स के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अहम होगा, जो पाकिस्तान में कपास की पैदावार के फ़रोग में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। दरियासना आबिद अली ने उम्मीद जाहिर की कि चीन पाकिस्तान को कीड़े मार अद्वियात और ड्रोन में मजीद मदद दे सकता है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में कीड़े मार अद्वियात तैयार करने वाले यूनिट्स लगाने और शुरू करने के लिए सरमायाकारी कर रही हैं। हमारे पास कीड़े मार दवा बनाने वाले यूनिट नहीं हैं। 90% से ज़्यादा कीड़े मार अद्वियात चीन से आ रही हैं। अगर पाकिस्तान में तैयार की जाएं तो ये आसान, सस्ती और किसानों के लिए काबिल रसाई होंगी। एक और चीज़ जो मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा वो है ड्रोन का इस्तेमाल। कपास के खेतों में पायदार, मुसावी और मतवाजन अंदाज में कीड़े मार अद्वियात के स्प्रे के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अली ने चीन में 6 साल तक तालीम हासिल करने और रिहाइश पजीर होने का शुक्रिया अदा किया, जिसने उनके विजन को वसअत दी और ज़राअत में जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से उनके फहम व अदराक को कुव्वत बख्शी है। अली ने चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज CAAS में ज़रई हशरातियात और पेस्ट कंट्रोल में PhD की तालीम हासिल की। CAAS एक जामे ज़रई तहकीकी इदारा है जो बराह रास्त अवामी जमहूरिया चीन की वजारत ज़राअत और दही अमूर के मातहत है। मुझे बीजिंग से कॉल मौसूल हुई और कहा गया, मुबारक हो, आप चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में PhD में दाखिले में कामयाब हो गए हैं। मैं वाकई प्लांट प्रोटेक्शन और स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन सीखना चाहता हूँ। अली ने कहा कि ऐसा लगता है कि चीन आने के बाद उन्होंने एक और दरवाज़ा खोला है। ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान पाकिस्तानी तुलबा जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी सीखने के लिए चीन आ रहे हैं और मादरे वतन की खिदमत के ख्याल के साथ वापस पाकिस्तान आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हैं। 2010 में चीन में महज चंद पाकिस्तानी तालिबे इल्म ज़ेरे तालीम थे, लेकिन अब मेरी अकेडमी समेत बहुत सी चीनी यूनिवर्सिटियां और अकेडमियाँ पाकिस्तानी तुलबा में मुतारिफ़ कराई गई हैं। बहुत से नौजवानों ने मुझसे रब्ता किया। मैंने उन्हें ईमेल भेजकर बताया कि चीन में दाखिले के लिए कैसे अप्लाई किया जाए, और उनमें से बहुत से कामयाब हो गए। अब 5 तालिबे इल्म निंगबू यूनिवर्सिटी के फिशरीज डिपार्टमेंट में ज़ेरे तालीम हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनकी हौसला अफजाई का मौका मिला। CPAC मंसूबे पर काम करने वाले कारकुन कौमी असासा हैं। लोगों ने इस अजीम मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत की। कौम की तकदीर बदलने के लिए एक गेम चेंजर। लेकिन CPAC का आपसे क्या ताल्लुक है?
میں نہیں جانتا کہ سی پیک کیا چیز ہے، البتہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ اورین لائن چین نے میری زندگی بہت آسان کر دی۔ میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میں کسی بڑے مقصد کے لیے جان دوں، میں اس بات سے ہی خوش ہوں کہ میرے پاس اپنی فیملی کی کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ آج کل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جو ہے وہ بہت ایزی ہو گیا ہے۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں ایک ولاگر ہوں اور میں ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان کو پوری دنیا میں پروموٹ کروں، تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اور میں ہوں مازیب، میں چائنا میں ہی رہتی ہوں اور چائنا میں ہی پڑھتی بھی ہوں، اور چائنا میں جو ہے مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے، میں ڈیلی جو ہے بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں۔ ایک بہت ہی اچھا گروپ چیلنج فیشن کمپنی، وہاں پہ میری جاب ہے، اور جاب پہ جانے سے پہلے میرا ڈیلی کا معمول ہے ناشتہ مسٹ ہے، ناشتہ ضروری کرنا ہے، اور یہ میں نے اپنی ہیبٹ جو ہے یہ چائنیز کلچر سے سیکھی۔ آگے بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کے ڈرائیونگ کر کے روزگار کما کر اپنی فیملی اور بچوں کو بھی خوش رکھیں گے، اس کو اپنے مقام پر پہنچائیں گے۔ اگر یہ آپ کے لیے نہیں ہے تو ان میں سے کسی پروجیکٹ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمیں سی پیک کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ بتائیں، کیونکہ آپ کی رائے اہم ہے۔ اپنے تجربے کو شیئر اور ہیش ٹیگ کریں #me and CPAC۔ ہمارے